तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन एंड डिजिटल फिल्टर्स. So first of all, we must understand how can you represent discrete time system in terms of block diagram, and what is the use of this block diagram in terms of digital filters. So as we have discussed in our last class, this is how you represent the discrete time system in terms of ब्लॉक डायग्राम. अब यहाँ पर अगर आपके पास दो सिस्टम्स हैं और they are connected in series, then this will be the representation in terms of two systems are connected in series. If two systems are connected in parallel, this will be the expression. And if two systems are connected in such a way that one system is feedback to the input, then that is how you represent the system. So it depends upon the presentation. आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी सर आ रही है. Are you listening me? Yes sir. Okay. आवाज आ रही है मेरी? जी सर. अच्छा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ब्लॉक डायग्राम में जो आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको आप हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस कंपोनेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है ना ये डिस्कस किया कि हमारे पास अगर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं सिस्टम्स के, अगर वो इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन हाउ कैन यू रिप्रेजेंट these blocks. And if one block is feedback to the input, then how you connected these blocks and represent in terms of equation. So in next slide we are actually representing the delay. So whenever there is a discrete time system, we have a delay over there. So if you are representing delay, then delay can be represented by this factor z minus 1.
So this represent a single delay. If it is z minus 1, then it will be x n minus, it will be equal to x n minus 1. It means the input is delayed by 1. If there is another block over there of z minus 1, then what will be the delay? If there is another block connected in series with z minus 1, then what will be the output equation? x of n minus 2. X of n minus 2. It should be written like this: n minus 2, x of n minus 2. So it depend upon how many delays are there, but you have to represent each delay by z minus 1 over there. Not You are not allowed to write z minus 2 directly, because it will affect the overall system structure. So obviously, if it is advanced, then what you have to do, you have to, instead of writing z, you have to writing z. Instead of writing z minus 1, you have to writing z over there. So this is how you represent delay in terms of z transform when you are taking the z transform. And if you are not taking the z transform, then हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, इट विल बी रिप्रेजेंट बाय डी. इस तरह हमने इस केस में देखा था, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी. तो डी इज़ समथिंग लाइक डिले ही है, लेकिन अगर हम उसको जी ट्रांसफॉर्म में कर रहे हैं तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जेड माइनस 1, अदरवाइज डी. सो if you can see this equation and how I can represent this equation in terms of block diagram. Just look at this equation and चेक करें कि इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. जी आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर. हाँ. अच्छा, तो इसमें इक्वेशन में और ब्लॉक डायग्राम में कोई डिफरेंस तो नहीं फील हो रहा? मतलब आपको सही लग रहा, समझ में आ रही बात? यस सर, सही लग रहा है. आपने तो आज क्लास ज्वाइन की है 70, पिछली क्लासों में तो आप थे ही नहीं. सर वो रिकॉर्डिंग देख लिया है मैंने. सही सही, गुड गुड. अच्छा, अब इसी तरह हमने ये भी एक डायग्राम डिस्कस की थी. इस डायग्राम में भी हमारे पास जो है, हमने इसी क्वेश्चन का हमने जो है जी ट्रांसफॉर्म लिया है. इसका जब जी ट्रांसफॉर्म लिया है तो फिर उस केस में जो डायग्राम बनेगी वो ये वाला. अब देखो, दैट डी इज रिप्लेस बाय जेड माइनस 1. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इफ़ देर आर मोर डिलेज आर देयर, लेट्स से कि जेड माइनस 2 है, जेड माइनस 3 है, तो आप स्ट्रेट अवे यहाँ पर जेड माइनस 3 ब्लॉक में नहीं लिखेंगे, बट यू हैव टू राइट 3 टाइम्स, यू हैव टू ड्रॉ दिस ब्लॉक 3 टाइम्स. यानी इफ इट इज जेड माइनस 3 है, तो यानी आपने इस तरह के 3 ब्लॉक और बना देने हैं. तो इसका जो है ना डिफरेंस आगे पता चलेगा जब हम ब्लॉक डायग्राम पूरा बनाएंगे, पूरे एक स्ट्रक्चर जब डेवलप करेंगे तो उसमें इसकी इम्पोर्टेंस होती है. वरना जहन ये कहता है कि यार हम एक ही जेड माइनस 1 है तो इसको हम जेड माइनस 3 कर दें, ख़त्म हो जाएगी बात. लेकिन इस तरह होता नहीं है. इट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच. सो वी हैव टू राइट each delay by z minus 1, and if it is z minus 3, then we have to mention 3 delays over there. अच्छा,
अब हम इसको जो है ना सर डिजिट। जी जी बोलें। सर अगर एडवांस हो तो हमारे पास हम डी की जगह ए लिखेंगे। यहाँ पर असल में जो है ना, यहाँ पर एक्चुअली जो ये डायग्राम बनाई है ना, ये एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ये है कि हम जो है ना इसका जी ट्रांसफॉर्म लेके ही ना फ्री बनाते हैं। लेकिन लॉजिकली आप सही है, लॉजिकली सही है कि अगर आपके पास ये डिले है तो आप उसको ए मेंशन कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। लेकिन मोस्टली हम ये डायग्राम यूज़ करते नहीं है, हम इसका जी ट्रांसफॉर्म लेके फिर यूज़ करते हैं। ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए है, अदरवाइज आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर डिजिटल फिल्टर की बात करते हैं तो आप सब यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द डिजिटल फिल्टर, व्हाट इज द डिजिटल फिल्टर। एंड इफ़ यू कैन सी दिस डायग्राम, सो आपके पास इनपुट सीक्वेंस है वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में है, और आपके पास आउटपुट भी डिस्क्रीट फॉर्म में आ रही है। और डिजिटल फिल्टर बेसिकली क्या कर रहा है, उसको अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिजिटल फिल्टर हम उसको जो है हम क्या कर रहे हैं, उसको फिल्टर आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग सम एल्गोरिथम। तो बेसिकली यहाँ पर डिजिटल फ़िल्टर को इन्वॉल्व करने का पर्पज़ ये है कि हम यहाँ पर डिजिटल फ़िल्टर में ये एक्चुअली स्टफ जो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है वो डिजिटल फ़िल्टर में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वजह से डिजिटल फ़िल्टर का यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर वही आपको पहले से कॉन्सेप्ट है कि डिजिटल फ़िल्टर बेसिकली करता क्या है कि अगर आपके पास एक सिग्नल है जिसमें नॉइज़ है और उसमें आपके पास इंटरफेरेंस और नॉइज़ जो है वो मिनिमाइज़ कर जाएगा, और इस बीच में आपके पास जो है रेजिडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन। I think these are general slides, and you are already familiar with the objective of the filtering, where filtering is involved। Let's say कि नॉइज़ सेपरेशन है आपके पास, और सिग्नल जब हम रिसीव करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब बॉडी में हम सेंस करते हैं और सिग्नल रिकॉर्डेड है, वी आर ऑलरेडी फेमिलियर। इसी तरह ये भी इसकी एप्लीकेशन में आ गया। और वायर एनालाइज फ्रीक्वेंसी डोमेन, दिस इज यस, यहाँ से इम्पोर्टेंस स्टार्ट होती है कि आपके पास हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस सिस्टम। अच्छा, अब अच्छा मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है? पीछे से ज़्यादा शोर तो नहीं महसूस हो रहा? सर क्लियर है आवाज़ आपकी। पीछे से जो बैकग्राउंड में कोई क्योंकि मैं भी है ना यूनिवर्सिटी से क्लास ले रहा हूँ, तो आपको पीछे से शोर तो नहीं महसूस हो रहा? नहीं सर, ठीक गुड। है। सर क्लियर है। क्लियर है। असल में मैं ऑफिस में ले रहा हूँ तो सराउंडिंग में बाकी टीचर्स जो है ना वो भी शायद क्लास ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो इस वजह से मुझे महसूस हो रहा है कि सराउंडिंग में बड़ा शोर है, तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, ठीक ही है। अच्छा, अब हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि हम जो है किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को, देखो ना, हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कहते हैं उसको, उसमें हमने डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में हमने एक डिजिटल फिल्टर ले लिया। इट कैन बी एनी सिस्टम, बट हमने डिजिटल फिल्टर लिया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो दिस इज़ एल टी आई डिजिटल फिल्टर। इट इज़ लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिजिटल फिल्टर। ठीक है, व्हाट इज़ लीनियर टाइम इनवेरिएंट? एल टी आई, व्हाट इज़ एल टी आई? लीनियर टाइम इनवेरिएंट। Yes, what is linear time invariant? सर टाइम के साथ साथ जो वेरी करे, मतलब इनपुट को अगर हम चेंज करेंगे तो आउटपुट भी इसी तरह चेंज होता जाएगा।
नहीं, इफ वी आर सेइंग टाइम इनवेरिएंट, तो टाइम इनवेरिएंट को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? व्हाट इज टाइम इनवेरिएंट? यस 36, व्हाट इज टाइम इनवेरिएंट? सर ऐसा सिस्टम जिसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ वेरी ना करे, सेम रहे। यानी जो टाइम जो है उसका जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट या आउटपुट जो है वो, अगर हम टाइम अगर हम ये देखते हैं कि सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो सेम रहे regardless of change in time, therefore we are saying it is time invariant. सही कहा आपने। तो इस तरह अगर LTI सिस्टम है और उसमें हम डिजिटल फिल्टर की लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, अब वी कॉल इट अ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल किया था जिसमें लिखा था, क्या लिखा था? लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, ये लिखा था ना। मैं लास्ट क्लास हमने में एक एग्जांपल डिस्कस किया था हमने, उसमें हमने ये लिखा था लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। तो इफ यू कॉल इट अ लीनियर डिफरेंस इक्वेशन और अ लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, दे आर सेम। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इफ यू आर डीलिंग विद द difference equation. This is the general form, and in this general form आप ये कह सकते हैं कि एक डिजिटल फिल्टर है, उस डिजिटल if it is a linear time invariant digital filter, so this is the general equation of a digital filter in which AK and BK are what? AK and BK are the coefficients, and M and N are what? M and N are the order of the filter. So what is the order of filter? How can you describe order? Yes, what is an order of filter? Yes, what is an order of filter? R और C के पेयर्स जितने होंगे उतने ऑर्डर। Good. Anyone else? अगर हम अगर हम एनालॉग साइड पर देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ फिल्टर इंडिकेट ये करता है कि आपके पास RLC है या RC है या LC है, उसके जो है कितने जो है ना पेयर्स जो है ना वो एक सर्किट में जो है ना वो कनेक्टेड है। वी कॉल इट ऑर्डर ऑफ फिल्टर। डेफिनेटली जितना ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा उतना फिल्टर आपका ज़्यादा, इट विल बी मोर सिलेक्टिव। तो सिमिलरली आपके पास डिजिटल में भी यही चीज़ होगी कि जितना आपके पास ऑर्डर जो है, या डेफिनेटली जब हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो हमारे पास एनालॉग फिल्टर है, उसका रिस्पॉन्स हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगेन एम एंड एन इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ फिल्टर। द हायर द पावर ऑफ द इक्वेशन, द हायर द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल फिल्टर, ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर हम एडर यूज़ कर रहे हैं या मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो दिस फैक्टर विल बी मल्टीप्लाइज और दिस फैक्टर विल बी मल्टीप्लाई। डिले तो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि 3 सैंपल एवरेजर। 3 सैंपल एवरेजर का मतलब ये है कि इट विल टेक द 3 सैंपल एंड कैलकुलेट इट्स एवरेज इन टर्म्स ऑफ डिजिटल। सो वी हैव दिस इक्वेशन and now we have to plot this equation. ये सही है डायग्राम? समझ में आ रही है डायग्राम? यस सर।
अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है जो कि आगे जाके और क्लियर होगी कि यहाँ पर, अच्छा जस्ट लेट मी एक्सप्लेन दिस इक्वेशन, देन वी विल डिस्कस फर्दर। सबसे पहले आप एक काम करें, इसका जी ट्रांसफॉर्म निकालें। जब इसका हम जी ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, जेड एक्स जेड हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा, एक्स ऑफ जेड हो जाएगा। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और ये क्या होगा, z -1 और दिस विल बी x ऑफ z हो जाएगा। यही होगा अगर मैं इसका जो है z ट्रांसफॉर्म लूँ। यस सर। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पर ये बिल्कुल, ये एक्चुअली यहाँ पर x ऑफ z होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर z मेंशन कर रहे हैं, इट विल बी x ऑफ z। ये x ऑफ z है आपके पास, और ये क्या है, ये y ऑफ z है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ये फ्लो देखते हैं, तो यहाँ पर इक्वेशन में क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या मेंशन होना चाहिए, ये मेंशन होना चाहिए, बिकॉज z x ऑफ z आ गया। सही है, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर सही है। इसी तरह अगर हम यहाँ की बात करते हैं, if we are moving in this direction, so what will be the equation over there? This equation will be there because z minus 1 is over here, तो x of z will be z minus 1, and similarly यहाँ पर क्या होना चाहिए, x of z होना चाहिए। तो अगर हम तीनों को यहाँ पर, क्योंकि एडर है, तीनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, और क्योंकि ये एवरेजर है, तो हम 1/3 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये सेकंड ऑर्डर फिल्टर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? जी जी, अभी मैंने बताया था आपको कि किसी भी फिल्टर का जो ऑर्डर है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम एनालॉग की बात करते हैं, तो एनालॉग में हम क्या देखते हैं, एनालॉग में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने RLC सर्किट्स हैं, या कितने LC सर्किट्स हैं, या कितने RC सर्किट्स हैं। अगर जितने उसके पेयर ज़्यादा होते जाएंगे, हम कहेंगे उतना उसका ऑर्डर ज़्यादा है, और जितना ऑर्डर ज़्यादा होगा उतना हम क्या कहेंगे कि फ़िल्टर जो है वो ज़्यादा बेहतर है, और वी कैन से द सेलेक्टिविटी ऑफ फिल्टर इज़ गोइंग टू इम्प्रूव। यही होता है एनालॉग फिल्टर में। जी सर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम डिजिटल साइड पे देखते हैं, इफ़ इट इज़ अ डिजिटल काइंड ऑफ अ फिल्टर, तो अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब ये है कि इसमें कितने डिले और एडवांसेस यूज़ हो रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर अब सिर्फ 2 यूज़ हो रहे हैं, एक और ये दूसरा यूज़ हो रहा है, आइदर इट इज़ डिले और एडवांस। तो जितने ये डिले और एडवांस यूज़ होंगे, उतना ही आपका जो है ना ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा। जितना इसमें अगर 2 यूज़ हो रहे हैं, तो वी कॉल इट अ सेकेंड ऑर्डर। अगर कोई भी एक डिले यूज़ हो रहा होता तो वी कॉल इट अ फर्स्ट ऑर्डर। इसके अलावा अगर हम डिलेज या एडवांस बढ़ाते जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फिल्टर, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो ऑर्डर है इंक्रीज होता जाएगा। और यू कैन सी एज ऑर्डर इंक्रीजेज द फिल्टर एफिशिएंसी इज गोइंग टू इंक्रीज। क्लियर? जी। अच्छा, फिल्टर में जब हम इस इक्वेशन में देखते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि ये ना नॉन रिकर्सिव फिल्टर है। एक फिल्टर होता है जिसे हम रिकर्सिव कहते हैं। इफ यू क्लासीफाई डिजिटल फिल्टर, आइदर दे कैन बी रिकर्सिव फिल्टर्स और दे कैन बी नॉन रिकर्सिव फिल्टर। सो नॉन रिकर्सिव फिल्टर मीन्स ऐसे फिल्टर्स जिसमें आपके पास कोई फीडबैक नहीं है। फीडबैक मीन द पोर्शन ऑफ आउटपुट इज नॉट कनेक्टेड टू द इनपुट, और आउटपुट इज नॉट इन्वॉल्व in the input. If you can see this expression over here,
there is no any output over there. Therefore we are saying it is non-recursive because there is no any feedback over there. इसमें इस एक्सप्रेशन में या इस डायग्राम में कहीं पर आपको फीडबैक नज़र आ रही है? कहीं पर भी फीडबैक नहीं है। अब आगे चल के हम ऐसे सिस्टम डिस्कस करेंगे जिसमें आउटपुट का जो पोर्शन है वो दोबारा इनपुट की तरफ जा रहा है। if this scenario is existing, it means कि it is what? It is a recursive filters. Recursive filters means ऐसे filters जिसमें आपके पास आउटपुट दोबारा कनेक्ट हो रहा है इनपुट से। It means कि they are having the feedback. Clear? Yes sir, clear. अब इस एग्जांपल में देखें कि we call it a recursive filter. Why we call it a recursive filter? क्योंकि सर आउटपुट वापस इनपुट में आ रहा है सर। Yes, there is a feedback kind of a system. So ये आपके पास फिल्टर का रिस्पॉन्स है। ऑब्वियसली इसको आपने अगर जी ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट किया है तो ये हो जाएगा वाई जेड इक्वल टू व्हाट? ए जेड माइनस वन एक्स ऑफ जेड, और क्या होगा आगे? भूल गए जी ट्रांसफॉर्म, ये एक्स ऑफ जेड, ये होगा ना इसका जी ट्रांसफॉर्म। इफ आई टेक द जी ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन स्ट्रेट अवे, दिस विल बी द एक्सप्रेशन। यस, यही होगा ना आउटपुट इसका। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जी जी बोले। डिले तो आउटपुट में आ रहा है ना? डिले आउटपुट में आ रहा है, सही है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे? सही है, y ऑफ z लिखेंगे। ठीक है, सही है सर। ठीक है। तो अब इस डायग्राम में देखें तो वही चीज़ है कि आपके पास ये आपके पास x ऑफ z अगर यहाँ पर आ रहा है तो यही चीज़ आपके पास आउटपुट से अगर वापस आ रही है तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन जो आएगा, यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन आएगा? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ओवर है? x of n y of n। नहीं, a भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी सर, a के साथ आएगा, a y क्या of है? n और x of n सर। नहीं, सर ए जेड इनवर्स वाई ऑफ जेड आएगा। यस, ए जेड इनवर्स वाई जेड आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास y आ गया, इट विल बी z माइनस वन ए। तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वाला एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। तो ए जेड माइनस वन वाई जेड, समझ में आ रही है बात नामुल्ला आपको? ये सर, ये तो आपने z ट्रांसफॉर्म में बात की ना, मैं तो सर बगैर z ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा था। नहीं, फिर भी आप एक्सएन कह रहे थे ना, एक्सएन तो नहीं आएगा ना यहाँ पर, जो मैंने पोर्शन हाईलाइट किया यहाँ पर एक्सएन तो नहीं आएगा, क्योंकि सर प्लस का निशान है तो x ऑफ n भी तो प्लस होगा ना सर, x ऑफ n नहीं x। वो तो ये रहा, वो तो ये यहाँ सर पर तो दोनों दोनों ऐड होके प्लस। आएंगे। ओके ठीक है, सर, यहाँ ठीक ठीक, आप मतलब प्लस से मैं पीछे पूछ रहे हैं सर। जी मैं जो इसको मैं सर्किल कर ठीक रहा है हूँ ना, सर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन। ओके सर, अंडरस्टूड सर। Okay, what is the order of this filter? It's the first order filter because number of delays are, how many number of delays are there? There is only one delay, so we call it a first order filter. सर जब जैसे आपने वो कहा ना कि ऑर्डर्स को कहते हैं कि नंबर ऑफ डिलेज और एडवांसेस जो होंगे सर, अब जैसे जी, इसमें एक सर, तो सिर्फ डिले काउंट करने पड़ेंगे या डिले और क्या कह रहे हैं? Please repeat your question. जी, क्या कह रहे हैं आप? जहाँ तक मैं समझाऊँ कि नामुला ये पूछना चाह रहे हैं कि सर अगर डिले और एडवांस दोनों मौजूद हैं तो हम दोनों को काउंट करेंगे या सिर्फ डिलेस को काउंट करेंगे? तो
आपको जो है ना दोनों को काउंट करना पड़ेगा, इधर डिलेज है और एडवांसेस है, दोनों को एक साथ काउंट करके उनका जो सम होगा दैट विल बी द order of filter. As you can ओके see सर। in the previous case, as you can see in the यही क्वेश्चन था ना आपका? ये सर यही क्वेश्चन है सर। हाँ नेट की इश्यू की वजह से शायद आवाज सही नहीं आ रही है सर। जी जी जी। अब जैसे जब आप इस केस में देखेंगे आपके पास एक डिले और एक एडवांस है, तो हमने दोनों का सम लिया, टोटल नंबर ऑफ डिले एडवांसेस कितने, 2 हैं, तो हमने यहाँ पर इसको सेकेंड ऑर्डर कह दिया। इसी तरह इन दिस केस हमारे पास नंबर ऑफ डिलेज जो है ना वो 1 है, तो हमने इसको जो है वो फर्स्ट ऑर्डर कह दिया। क्लियर? यस सर। और ऑब्वियसली हम क्योंकि देयर इज फीडबैक इज इन्वॉल्व ओवर हेयर, सो वी कॉल इट अ रिकर्सिव फिल्टर। क्लियर? अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। इस स्लाइड को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर हम यहाँ पर डीएसपी एल्गोरिथम को डिटरमिन करना चाह रहे हैं तो टाइम डोमेन में हमारे पास 2 अप्रोचेज हैं। एक तो है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन और उसका जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स। और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में करना चाह रहे हैं, एज यू कैन सी वी हैव अ जी ट्रांसफॉर्म, सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन एंड पोल जीरो। एज यू कैन सी पोल जीरो में आपके पास जेड प्लेन भी आ जाता है जिसमें हम सर्किल आरओसी वगैरह बनाते हैं। और अगर फोरियर डोमेन में है तो उसका फिर हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है या डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है या डीएफटी हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम ये चीज़ें यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं। दिस इज़ हाउ यू क्लासीफाई, how can you determine the DSP algorithm depending upon the requirement। और आपको ये देखना होता है कि अगर कोई सिस्टम है उसमें अगर मैं टाइम डोमेन में सॉल्व कर रहा हूँ तो अगर वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो देन यू कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। ठीक है? एनी क्वेश्चन? $36 एनी क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। सही, गुड। 97 ऑल क्लियर? नो क्वेश्चन सर। नो क्वेश्चन जी। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज़। क्लियर है सर। Yes, anyone else? ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द अटेंडेंस।